यस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था DFS, राइट। उसमें कौन से टर्म्स यूज होता है, मतलब टर्म्स यूजिंग DFS, ठीक है। तो जैसे ब्रिक है, मेटा डेटा है, फॉल्ट टॉलरेंस है, देन रेप्लिकेशंस है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी एंड DFS के इम्प्लीमेंटेशन देखे थे 6 टाइप्स के, जो लस्टर एफएस है, लस्टर, मूस एफएस, माइक्रोसॉफ्ट DFS, ओपन AFS, एक्सट्रीम एफएस, ये सब चीज़ें देखी थी, राइट। अभी हमको देखना है क्लस्टर एफएस इन डिटेल, जो इम्प्लीमेंटेशन है DFS का। तो बेसिकली इट इज़ यूज इन DFS इम्प्लीमेंटेशन। और DFS क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे फाइल्स रहती है, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। Gluster FS software is available as pre-compiled package for several Linux distributions. It's always option for downloading latest version of source code, compile and build it yourself. तो ग्लस्टर एफएस ऐसे सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल रहता है एज अ प्री कंपाइल्ड पैकेज फॉर सेवरल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन. In our installation here we are creating small DFS environment consisting of 2 server. तो यहाँ पे एक DFS का एग्जाम्पल बताया है, जैसे सर्वर A एंड सर्वर B है एंड क्लाइंट C है, ठीक है. A distributed replicate volume will be hosted by 2 server and ensure availability and reliability. To implement cluster FS, following steps are there. Install cluster FS on server A and server while log into system as root user, type of the following terminal. तो हमें जो क्लस्टर एफएस ए सर्वर पे उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, एक एग्जांपल बताओ. और रूट यूज़र मतलब जैसे हर फाइल पर एक्सेस करने की परमिशन रहती है. यम माइनस वाई इंस्टॉल क्लस्टर एफएस सर्वर. Install a cluster FS on the client C by installing core cluster FS as well as native cluster FS client package. Type the following console, that is yum minus y install cluster fs fields, ठीक है. अभी मैनेजिंग क्लस्टर एफएस में हमें कैसे देखना है, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे. इट इन्वॉल्व स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द सर्विस. Okay, then name resolution. Cluster FS particular about name resolution. We will make sure the following entries are available in etc host file or free system. सर्वर ए, सर्वर बी एंड क्लाइंट सी, तो हर एक को एक IP एड्रेस दे देंगे, ठीक है. टू चेक द स्टेटस ऑफ क्लस्टर डेमॉन फॉलोइंग कमांड इज यूज, दैट इज etc init d cluster d status, ठीक है. वैसे ही सेम स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेटस चेक के लिए, तो etc स्लैश init id स्लैश क्लस्टर d ये कॉमन रहेगा, और खाली जो इसके बाद वाले कमांड है जैसे स्टेटस, स्टॉप एंड स्टार्ट, तो ये कॉमन रहेंगे. देन हमें देखना है क्रिएट अ ट्रस्टेड स्टोरेज पूल. A trusted storage pool in DFS implementation all of the servers or bricks that use state use storage to be a part of your DFS. The total capacity of the DFS can be increased by adding new storage bricks to storage pool. From server A, add server B to the storage pool with the help of the following command. This is cluster peer-to-peer prop server B. Then create a distributed replicated volume. Here the data under slash data directory is used to storage space to be distributed. अभी यहाँ पे वॉल्यूम मतलब आपकी जो डिस्क है उस पर की जगह, मतलब डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. Volume used data will be created first. On server A, create a directory and subdirectory named as data A. So mkdir से हमें create करनी है directory. Then वैसे ही एक B server पे हमें create करनी है, ठीक है. From server A, create huge data volume as cluster fs volume create huge data replica 2. तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों डिस्क पे जो है, दोनों मतलब सर्वर ए सर्वर बी पे ये हो जाएगा,
यूज डेटा मतलब हमें स्टोरेज पूल बनाना है, ठीक है, स्टोरेज के लिए जगह बन जाएगी। To view the information about the cluster it is volume, use the info option with the cluster it is command. So you have to do the cluster volume info use data command. Okay. Then to start the use data volume, type the following. Okay. For starting use data, you have to give the command cluster space volume space start space use underscore data. Okay. So okay. The next topic is mount the cluster reduce volume from the client C. ओके अभी जो हम देख रहे थे तो वो सर्वर ए एंड सर्वर बी, और अभी हमने एक एग्जांपल देखा था क्लस्टर रिक्वेस्ट का क्लाइंट सी। तो माउंट मतलब क्लाइंट सी से हमें यहाँ पे कैसे रिक्वेस्ट करनी है सर्वर ए एंड सर्वर बी। Client system that can access the cluster request using different method and protocol. The recommended way is to make the content of the cluster request mount point on our simple server be available via SMB protocol to Windows, Mac, Linux client by creating Samba shell definition of similar to the following smb.config file of server B. Use data. Path is equal to data slash B. Comment is equal to Samba share on cluster DFS browsable yes and writable yes. तो अगर आप यूज डेटा वाली फाइल अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो अभी कॉन्फ़िगर करना मतलब क्या रहता है, तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि कोई भी एक फाइल रहती है उसको हम एडिट करते हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ चेंजेस होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, जैसे परमिशन येस और नो करनी है तो वो अब यहाँ पे हमको चेंजेस करके सेव करना है, ओके। फॉर एक्सेसिंग cluster address volume from client, you have to give the command touch mnt cluster use data volume. Make sure that files were properly created by performing simply directory listing. This mnt cluster use data. अगर आप एलएस करेंगे तो जो फाइल से 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में दिखाएगा।
ओके, सो नेक्स्ट जो है अभी इसमें नहीं है पीडीएफ में, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज एनआईएस। ठीक है, तो अभी नेटवर्क इंफॉर्मेशन हमने एनएसएस देख चुके हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम। अभी हमें देखना है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। It is developed by Sun, that is SUN, as a networking naming administration system for smaller network। तो SUN क्या है? ये एक नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जो स्मॉलर नेटवर्क के लिए डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, then it facilitates the sharing of critical data stored in flat file among the system on network। तो ये क्या करता है, जो डेटा मतलब नेट थ्रू ओवर द नेटवर्क जो डेटा शेयर होता है क्रिटिकल डेटा, तो ये इस पर स्टोर रहता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। It maintains the central copy of data. If any updation is done on central data, the data updated automatically propagate to all network user। तो ये क्या करता है, एक सेंट्रल कॉपी रखता है। ठीक है, तो सेंट्रल कॉपी रखने से क्या होता है कि कुछ भी अपडेशन हुआ है, मतलब अभी कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं या फिर कुछ अपडेशन आया है, तो ये क्या करता है, अपने जो सेंट्रल कॉपी है तो उसको डेटा ऑटोमेटिकली होता है, और वो क्या करता है दूसरे जो नेटवर्क में, ऑल ओवर नेटवर्क में जो डेटा है सबको वो फॉरवर्ड करता है, मतलब कुछ भी अपडेशन हुआ था। ठीक है, द नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस इज जस्ट अ सिंपल डेटाबेस कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ tables। ठीक है, the client can query those tables। Each table is created from straight text file such as etc pass wd। तो ये इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखने जाएंगे नेटवर्क, तो आपको ने याद है etc पास wd फाइल हमने यूनिट 1 में देखी थी, तो वैसे ही आपको फील्ड्स मिलेंगे जैसे एक टेबल के फॉर्म में, वहाँ पे डेटा स्टोर रहता है, यूज़र नेम था उसमें, आईडी था, ग्रुप आईडी था, जी सी ओ एस फील्ड्स थे, राइट, ये सब चीज़ें थी, which are tabular in nature and have at least one column that is unique for every row। NIS table can be queried in two of ways, that is listing the entire table and pulling a specific entry to match for search for a given key। तो इसकी जो क्वेरी है वो दो चीज़ों के लिए की जाती है, एक तो जो कंटेंट है मतलब टेबल का वो लिस्ट करने के लिए, और दूसरा है कि की दी जाती है और उसको सर्च किया जाता है। Some daemons and processes that are associated with NIS YP-serve, YP-XFRD and YP-bind। तो पहला जो है YP-serve, तो उसका मतलब क्या है, it runs on the NIS server and listen for queries from clients and respond with answer to those queries। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और उनको रिस्पॉन्स में क्या देता है, आंसर देता है जो कि क्लाइंट ने क्वेरी भेजी थी। देन YP-XFRD, it is used for propagating and transferring the NIS database to a slave server। ठीक है, अब स्लेव मतलब मास्टर एंड स्लेव, ये कंसेप्ट आपका फिजिकल कंप्यूटिंग एंड आईओटी में हुआ था, राइट। तो मास्टर मतलब एक मास्टर रहता है, जैसे कॉलेज का एक प्रिंसिपल है और अदर्स जो है उसके कलीग्स हैं। ठीक है, या फिर आपका एक टीचर है तो वो मास्टर है, और जो स्लेव से मतलब आप स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर। तो वो क्या करेगा, एक मास्टर सर्वर है NIS, राइट, तो जो बाकी के स्लेव डिवाइस है उनको डेटा सेंड करेगा। देन YP बाइंड इज द क्लाइंट साइड कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग एन NIS सर्वर टू बी क्वेरीड फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है बेसिकली, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर फाइंडिंग एन NIS सर्वर टू बी क्वेरीड फॉर इंफॉर्मेशन। NIS only have one master NIS server which authoritative server stores the original file। जहाँ पे ओरिजिनल फाइल स्टोर रहती है, और NIS सर्वर ऐसी चीज़ है कि एक ही सर्वर रहता है, मतलब मास्टर सर्वर एक ही रहेगा। ओके, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लोड नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मोर देन वन मशीन बाय सेटिंग अप वन और मोर सेकेंडरी स्लेव NIS सर्वर। तो अभी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे डेटा खाली एक ही मशीन पे, मतलब जो ओरिजिनल है वहाँ पे स्टोर करके नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि दो वहाँ पे सेकेंडरी स्लेव जैसे स्लेव डिवाइस बनाए जाते हैं।
Along with distributing the load, secondary server provides better of handling server of failures. ओके अगर मेन सर्वर फेल हुआ रहा है तो सब आपके जो सिस्टम है डाउन होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर स्लेव डिवाइस पे थोड़ा थोड़ा हम डेटा स्टोर करेंगे तो सर्वर का फेलियर भी होता है, तो भी हमारे पास जो सेकेंडरी सर्वर है उस पर डेटा जो है स्टोर रहता है। When master or other secondary servers are down, secondary NIS server can continue answering queries. Okay, जैसे मैंने बोला अभी. To keep the master and slave in sync, secondary NIS server receives an update whenever the primary NIS server is updated. तो अभी ये sync में होना चाहिए सबका master and slave device का. तो क्या होगा कि जब भी कोई updation होता है, okay, जब master उसने कुछ अपडेशन किया तो वैसे स्लेव डिवाइस पे वो भी अपडेशन कर देंगे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरिंग द मास्टर एनआईएस सर्वर। अभी हमें एनआईएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, बट खाली मास्टर सर्वर को करते हैं। ओके, क्लाइंट को नहीं कर रहे हैं हम, पहले खाली मास्टर जो है मास्टर सर्वर एनआईएस उसको पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे। एज अ पार्ट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर एनआईएस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. The server needs to be installed manually. Required software can easily downloaded from Linux distribution software repositories such as website और CD. तो उसको हम CD के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे कुछ URL डाल के हम उसको NIS को जो है इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, आफ्टर इंस्टॉलिंग NIS सर्वर सॉफ्टवेयर सर्विस आर एनेबल्ड एंड कॉन्फ़िगर। राइट, उसको एनेबल करना पड़ेगा, देन उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। द चेक कॉन्फ़िग टूल कैन बी यूज टू मेक श्योर दैट NIS सर्वर दैट इज YP सर्व। तो YP सर्व किस लिए यूज़ होता है? जब क्लाइंट कुछ क्वेरी करती है तो उसका जो रिस्पॉन्स है विद आंसर भेजते हैं। ओके, it is automatically between system boot. Yum program to download and install package quickly from the internet. तो yum जो है, yum क्या करेगा? इंटरनेट से फाइल जो है डाउनलोड करेगा और आपके मशीन में इंस्टॉल कर देगा। Following are the 4 steps that used to configure the NIS server. एक आपको इमेज बताती हूँ, वेट। ओके, सबको इमेज दिखती है स्क्रीन पे? अभी ये इमेज मैंने क्यों दिखाई, क्योंकि हम अभी मास्टर एनआईएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राइट। तो उसके कुछ स्टेप्स है। पहले एस्टैब्लिशिंग डोमेन नेम, सेटिंग, स्टार्टिंग एनआईएस, एडिट द मेक फाइल एंड रन वाईपी इनिट टू क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। तो फर्स्ट जो देखो स्टेप 1 एस्टैब्लिशिंग द डोमेन। तो पहले हमको डोमेन नेम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। फिर उसके लिए कहाँ मतलब कौन से कमांड यूज़ करने? यू कैन सेट द NIS डोमेन नेम बाय यूजिंग डोमेन नेम कमांड एज हैश डोमेन नेम linux.example.com। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम देना है, ठीक है। तो linux.example.com हैश डोमेन, ये कमांड देके आप पहली जो स्टेप है एस्टैब्लिशिंग की वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देन स्टार्टिंग NIS। ओके, तो हमें NIS को अभी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या कमांड देनी पड़ेगी? सर्विस स्पेस RPC बाइंड स्पेस स्टार्ट, ठीक है। और RPC बाइंड हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करने वाला है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करने वाले हैं विद आंसर, ठीक है। तो उसके लिए कमांड है सर्विस स्पेस RPC बाइंड स्पेस स्टार्ट। ओके, देन NIS विल बी स्टार्टेड एज सर्विस YP सर्व स्पेस स्टार्ट, ठीक है।
तो RPC बाइंड है एंड YP सर्व है, तो इसको आपको स्टार्ट कमांड करके जो सेकेंड स्टेप है वो कंप्लीट कर देनी है. ओके. देन स्टेप 3, एडिट द मेक फाइल. The files that get shared via NIS are listed in Makefile. तो जो फाइल शेयर होती है थ्रू NIS, तो वो मेक फाइल में लिस्ट हो जाती है. द मेक फाइल कैन बी ओपन विथ एनी लिनक्स एडिटर एंड ऑल कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शंस कैन बी एक्सप्लोर्ड. ओके. सो जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ वन इज रन ypinit to create the database. Once the make file is ready, initialize the YP NIS server using ypinit command. For a 64-bit server, this is the command. तो उसके लिए कमांड है #user lib64/yp/ypinit space -m. तो lib मतलब library. Here the -m option tells ypinit to set up the system as a master NIS server. तो ये जो -m ऑप्शन है वो क्या बताता है कि जो NIS सर्वर है मास्टर को उसे सेटअप करना है. ओके. और उसके लिए कमांड कहती है user/library64/yp/ypinit -m. Okay. Then restart RPC bind and YP serve after that as follows. Make the configuration setting worse. तो आपको देना है सर्विस RPC bind स्पेस रिस्टार्ट. ठीक है. सर्विस YP सर्व स्पेस रिस्टार्ट. पहले स्टार्ट करनी है सर्विस, तो हमको देना है सर्विस RPC bind स्टार्ट सर्विस YP सर्व स्टार्ट. ठीक है. और रिस्टार्ट करना है तो सर्विस RPC bind रिस्टार्ट सर्विस YP सर्व रिस्टार्ट. ठीक है. ये जो लास्ट वाली कमांड रहती है ना वो खाली चेंज होते हैं वहाँ पे रिस्टार्ट स्टार्ट स्टॉप. और जो पहले के जो रहते हैं सर्विस RPC, तो वो कॉमन रहते हैं चीज़ें हर चीज़ में. कोई भी आप सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, या फिर स्टॉप करना है स्टार्ट करना है, तो जो ये पहले वाले दो कमांड है वो कॉमन ही रहते हैं और खाली स्टार्ट स्टॉप एंड रिस्टार्ट करना रहता है. ओके. ओके. तो ये था कॉन्फ़िगरिंग मास्टर NIS सर्वर.